गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंक्लूड करेंगे और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह की क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास कैसे बन सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास एंड एडवर्ब क्लास? आई विल टेल you the basic difference between the three classes that form complex sentences. I have told you several times how the complex sentences are formed or what are the characteristics of complex sentences. Whenever in a simple sentence you use a clause to perform the function of a noun or an adjective or an adverb, these clauses in place of noun, in place of adjective and in place of adverb are called noun clause, adjective clause and adverb clause respectively. So whenever you use an entire clause in place of a subject, in place of an object, in place of a prepositional object, what I have already told you, the position of noun, which are 5. Whenever you use some clause in place of noun, whether it is N1, N2, N3, N4, N5, it is noun clause. Then whenever you are there to identify a noun clause, you must confirm that it is placed in any one of the 5 positions. If you can't find it out, if you can't relate it with any one of the 5 positions, you should be doubtful whether it is noun clause or not. Barring one position that has been defined, has been given, has been described in rule number 36, chapter number 5, more about noun clause. That is used after a hidden preposition of, in and about. Certain adjectives are followed by preposition in, about, or of. Whenever you use a noun clause in place of N3, in place of prepositional object after the structure adjective plus preposition, you need to drop the preposition before using that noun clause. That is also a noun clause of N3 position, where the preposition is dropped, where the preposition is omitted. So that is also a position of noun clause, you can say. Thus you find 6 type of noun clauses or noun clauses in 6 positions. So if you have gone through all the position of noun clauses, if you have watched the videos, my videos pertaining to the noun clauses, I think you will not be a bit confused about the position of noun clause. Same type of clause, having all the words, similar words, maybe an adjective clause, but how? You have to identify whether this clause has been used in place of noun or besides noun, beside noun. जगह पर है या नाउन के बगल में. Further you need to identify N1, N2, N3, N4 and N5. If you find some noun in place of N1, N2, N3, N4 and N5, and to qualify that noun, if you use some clause, similar words, the clause consisting of similar words like the noun clause, like those of noun clause will be called an adjective clause. वही शब्द रखने वाली क्लाज नाउन क्लाज की बजाय इस बार एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगी. कहां पर है वो? नाउन की जगह पर नहीं, नाउन के बगल. नाउन की जगह पर वही शब्द समूह आता है तो वो नाउन क्लाज है, और अगर नाउन के बगल में उसके ठीक बाद अगर वही शब्द समूह आता है तो वो एडजेक्टिव क्लाज. और इसी तरह से अगर वही शब्द समूह, द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, टू क्वालिफाई एन एडवर्ब, that is performing the function of adverb.
that will be adverb clause. So you need to identify whether this clause is doing the work of an adverb or the work of an adjective or the work of a noun. If you are able to find out this peculiarity, this difference, you will be able to identify, to differentiate noun clause, adjective clause and adverb clause, whether it consists of similar words. तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूं रेन एंड मार्टिन के बुक 2 में चैप्टर नंबर 3 में रूल नंबर 25। तो सारे लोग रेन एंड मार्टिन में बुक 2 में चैप्टर नंबर 3 रूल नंबर 25 पर चलिए, जहां पर आपको एक ही तरह के 3 क्लॉजेस को अलग अलग एक ही जैसे एक ही शब्द समूह रखने वाले क्लॉजेस को अलग अलग नामों से वहां पर आपको या अलग अलग फंक्शन में वहां पर आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर बोर्ड में उन्हें लिखने भी जा रहा हूं बेसिकली, और बोर्ड में लिख करके मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए ये पहचानना। तो मैं पहुंच गया हमारी जो बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 है और उसके रूल नंबर 25 में मैं पहुंच गया, और बेसिकली 26 में 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, मैं वो आपके लिए लिखता हूं। पहला सेंटेंस है आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हिम। पहला सेंटेंस है आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हिम, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई कुड फाइंड हिम। आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई कुड फाइंड हिम। और तीसरा सेंटेंस है आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हिम। आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हिम। तो जरा गौर से देखिए ये शब्द समूह वेयर आई कुड फाइंड हिम, वेयर आई कुड फाइंड हिम, वेयर आई कुड फाइंड हिम। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग सिमिलर वर्ड, एक ही जैसा शब्द समूह रखने वाला शब्द, एक ही जैसे शब्द रखने वाला शब्द समूह। और ये तीनों जगह पर क्लॉज है, इसलिए क्लॉज है क्योंकि यहां पर भी कुड फाइंड फाइनाइट वर्ब है, यहां पर भी कुड फाइंड फाइनाइट वर्ब है, यहां पर भी कुड फाइंड फाइनाइट वर्ब है। एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ लार्ज सेंटेंस हैविंग फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। तीनों जगह पर ये क्लॉज। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन सी क्लॉज किस जगह पर। सेंटेंस में नाउन का फंक्शन, एडजेक्टिव का फंक्शन, एडवर्ब का फंक्शन, ये सारे फंक्शन आप लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है यहां पर यू नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द क्लॉज। तो यहां पर मैं जानता हूं कि ये आई सब्जेक्ट है जो कि N1 पोजीशन में रखा है, और नो की सेकेंड फॉर्म न्यू ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हाँ जल्दी बोलो, हम पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम अभी पढ़ा लें फिर बात करेंगे तुमसे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आई सब्जेक्ट का काम कर रहा प्रोनाउन, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये पूरा का पूरा शब्द समूह लिखा हुआ है। आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद N2 का प्लेस होता है। तो N2 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इस नो के कर्म की जगह पर ये पूरा शब्द समूह आया है और ये क्लॉज का लक्षण रखता है, तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। अब हम दूसरी जगह पर आते हैं तो हम पाते हैं यहां पर ये जो वेयर आई कुड फाइंड हिम है,
हम बाकी सेंटेंस को देखेंगे। आई सब्जेक्ट है और वेंट आपकी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कुछ आ सकता है तो एडवर्ब आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जाने का स्थान बताने वाला ये हिस्सा लिखा है टू द प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ये हिस्सा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है और इस एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस के अंदर ये टू प्रीपोजिशन है। और अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो ये द प्लेस क्या हुआ, द प्लेस N3 हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अगर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, नाउन की जगह पर ही, मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मींस फंक्शन ऑफ नाउन, तो ये नाउन है। अब नाउन के ठीक बगल में ये रखा हुआ है तो ये कहां पर आ गया, एडजेक्टिव की जगह पर, क्योंकि नाउन की विशेषता आगे पीछे आ करके जो भी शब्द या शब्द समूह करते हैं आप उन्हें एडजेक्टिव मानते, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास। तो यहां पर ये प्लेस की विशेषता बताने के लिए पूरा का पूरा ये शब्द समूह यूज हुआ है। वो मैं चला गया उस स्थान में, कौन से स्थान में, वेयर आई कुड फाइंड हिम, जहां मैं उसे पा सकूं, जहां मैं उसे ढूंढ सकूं। ये वेयर आप जानते हैं कि यहां पर अब रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी। ये वाला वेयर आपका नाउन क्लॉज का कनेक्टिव है, जिसे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कह सकते हैं, रेन एंड मार्टिन में एक जगह बताया गया। बाकी ये वेयर आपका कनेक्टिव है। अगर आप बुक 1 में पैटर्न देखें, शायद तो आपका पैटर्न नंबर 16 होगा, तो ये आपको मिल जाएगा, 17 है शायद। तो ये आप देखेंगे ये कनेक्टिव है, यहां पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस प्लेस का, ये पूरा का पूरा क्लॉज इस प्लेस की विशेषता बताने वाला क्लॉज हो गया और यहां पर इसे एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाएगा। इसके बाद यहीं पर मैं बता दूं, इसी जगह पर इन्होंने क्या किया, ये टू द प्लेस को गायब कर दिया। टू द प्लेस जो कि एडवर्ब फ्रेज था, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस था, उसको गायब कर दिया। जब इस पूरे को गायब कर दिया तो वेंट के तुरंत बाद आ गया ये क्लॉज। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, पैटर्न नंबर 1, चैप्टर नंबर 30। अगर कोई ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका प्रेडिकेट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, उसके बाद सिर्फ लगा सकते हैं तो एडवर्ब लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन अपने बाद अगर कुछ ले सकती है तो एडवर्ब ले सकती है। पढ़ा रहे हैं निजामुद्दीन? क्लास है क्या? हाँ, थोड़ा सा, थोड़ी देर फिर बात करते हैं। चलो अभी वाले मिला पहले उनसे। तो उसी में मिला लो। चलो ठीक। तो यहां पर ये वेंट आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है और इसके बाद अगर आपका कुछ आता है तो एडवर्ब आता है, तो ये आपका एडवर्ब के स्थान पर पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। तो अब इसे कहा जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये जाने का स्थान बताने वाला एडवर्ब क्लॉज हो गया। मैं चला गया कहां, जहां मैं उसे ढूंढ सकूं। यहां पर जब इन्होंने लिखा मैं उस स्थान में चला गया जहां मैं ढूंढ सकूं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यहां पर बिना प्लेस या कोई दूसरी नाउन को लाए हुए सीधे सीधे क्लॉज लगा दी गई वेंट के बाद, तो ये एडवर्ब की जगह आ गई और ये एडवर्ब क्लॉज। तो ये एक नमूना रेन एंड मार्टिन ने दिया है चैप्टर नंबर 3 और रूल नंबर 26 में, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब कुछ सेंटेंसेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लेकर के। तो अब आप सारे लोग एक्सरसाइज नंबर 35 पे गौर करिए। एक्सरसाइज नंबर 35 में सारे के सारे सेंटेंसेस मिक्स हैं, मिक्स। कहीं पे नाउन क्लॉज, कहीं पे एडजेक्टिव क्लॉज, कहीं पे एडवर्ब क्लॉज। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। जैसे मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूं तो लिखा है कम व्हेन यू लाइक। अब कम एक इंपरेटिव सेंटेंस है, यही है मेन क्लॉज और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन।
आना जाना, सोना, उठना बैठना, हंसना रोना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अगर इनके बाद कुछ आ सकता है तो एडवर्ब आ सकता है। तो इसका मतलब वेन से जो कुछ भी शुरू हो रहा वो एडवर्ब है। एडवर्ब का काम करने वाली क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सी एडवर्ब क्लाज है? तो आपको बताया गया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे फोकस करना होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी एडवर्ब क्लाज है। तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 7 मोर अबाउट एडवर्ब क्लासेस में ये पढ़ रखा है, व्हेन लगा हुआ। अब ये व्हेन इसे एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम बना देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पहचान जाते हैं कि एडवर्ब क्लाज है कि नाउन क्लाज है कि एडजेक्टिव क्लाज है, दैट इज सफिशिएंट। आगे आपको बहुत कुछ समझाया जा चुका है। इसी तरह एक और सेंटेंस लिखा है, आई नो द मैन हु इज हियर। अब यहां पर आई नो द मैन ये मेन क्लाज है, पैटर्न नंबर 3 पर आधारित। फिर से नो ट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है हिम, सॉरी द मैन। अब जब ऑब्जेक्ट द मैन लगा दिया गया तो सेंटेंस यहां से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद द मैन के लिए अगर कुछ बताने के लिए आप लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। मैन के लिए आप हु का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो ये जो हु इज हियर लिखा है ये आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी। मैन एंटीसीडेंट, जिस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव क्लास का यूज किया जाता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से होती है। तीसरा सेंटेंस लिखा है, ही सेज दैट ही मेट योर ब्रदर। अब यहां पर भी देखिए, ही सब्जेक्ट है और सेज ट्रांजिटिव वर्ब है। सेज मीन्स कहना, बताना। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद फिर से कर्म आता है, तो कर्म की जगह पर हम देख रहे हैं पूरा का पूरा शब्द समूह है। यू हैव टू डेवलप द आर्ट टू आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसी शब्द समूह को पहचानने की आपको आर्ट पैदा करनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा शब्द समूह एक है, ये पूरा एक जत्था है, ये पूरा एक गुट है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये पूरा दैट से लेकर के आखिरी तक, दैट ही मेट योर ब्रदर, ये पूरा का पूरा एक शब्द समूह है, जिसके अंदर मेट फाइनाइट वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसके अंदर क्लास का लक्षण आ गया। और ये क्लास कहां रखा हुआ है? सेज के तुरंत बाद। और सेज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट आती है जो कि नाउन होती है। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर ये पूरा शब्द समूह रखा है तो ये नाउन क्लास होती है। तो तीनों सेंटेंसेस में लगातार एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास लगे हुए थे। ऐसे ही आपको पहचानना है, जहां पर कंफ्यूजन हो, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के वीडियोस देखिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। अब हम आगे चलते हैं, जो इससे भी ज्यादा जरूरी काम है आपसे। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, गौर से सुनिए, समझिए अच्छी तरीके से। अब मैं एक ग्राफिकल यूज आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारी, ये जो है एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, रिलेटेड टू मिक्स्ड सेंटेंस। तो इसको गौर से समझिएगा। कोई भी सेंटेंस आपका एक एटम की तरह से होता है। एटम के बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस बेसिकली फाइनाइट वर्ब, और ये जितने घेरे आपको इसमें मिलते हैं ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने वाला घेरा है। जैसे हम मान लीजिए इस घेरे को सब्जेक्ट कह दें, मान लीजिए हम इस घेरे को ऑब्जेक्ट कह दें। सेंटेंस अगर और ज्यादा है, एक और घेरा, तो हो सकता है ये एडवर्ब हो। इसके अलावा अगर एक और घेरा हो तो हो सकता है कि किसी ने एडजेक्टिव का भी फंक्शन परफॉर्म किया हो। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का फंक्शन नाउन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट का फंक्शन नाउन परफॉर्म करता है। तो ये एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये इनके घेरे हैं। इन किसी भी सर्किल में हमको कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इस फाइनाइट वर्ब के लिए जितने आसपास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले शब्द हैं वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब नहीं रखते।
और अगर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं रखता तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिंपल है, क्योंकि सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है जो कि बीच में, सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर इन्हीं में से किसी का भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने क्लाज यूज कर दी तो क्लाज के अंदर भी फाइनाइट वर्ब होती है। मान लीजिए सपोज ये सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं एक फाइनाइट वर्ब आ गई। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का काम करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो खुद फाइनाइट वर्ब रखता है। अब ये नाउन क्लाज हो गया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह से हो सकता है कि सब्जेक्ट की जगह पर तो आपने नाउन क्लाज लगाई ही लगाई है, एडवर्ब का काम करने के लिए भी आपने इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज कर दिया। एक और सबऑर्डिनेट क्लाज जुड़ गई एडवर्ब क्लाज के रूप में, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाज हो सकता है कि एडजेक्टिव का काम करने के लिए भी आप इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यूज कर दें। ये भी आपका एक क्लास बन गया एडजेक्टिव क्लास। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब मुख्य है, इनका वजूद, इस फाइनाइट वर्ब का वजूद भी इसी पर निर्भर है, क्योंकि अगर ये फाइनाइट वर्ब ना होती तो इस सब्जेक्ट का काम ना होता। अगर ये फाइनाइट वर्ब ना होती तो ये एडवर्ब का काम ना होता। अगर ये फाइनाइट वर्ब ना होती तो इस एडजेक्टिव का काम ना होता, या कह लीजिए कि इसके अंदर जो नाउन कोई यूज हुई है उसके लिए अगर आपने एडजेक्टिव यूज किया है तो ये एडजेक्टिव क्लास का काम ना होता। तो चूंकि इसका 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 सभी का वजूद इस पे निर्भर करता है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट। और यहां पर मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल सबऑर्डिनेशन। मैं अपनी स्टाइल में आपको बता रहा हूं, ये किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। दिस इज पैरेलल सबऑर्डिनेशन। जैसे कि किसी एक दुकान में 3 नौकर और 1 मालिक हो। अगर 3 नौकर और 1 मालिक हैं तो तीनों नौकर अपना सबऑर्डिनेशन मालिक से ले रहे हैं। तीनों के तीनों एक ही मालिक को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिसेज में ऐसा भी होता है, सरकारी दफ्तरों में एक टॉप लेवल में बैठा होता है अधिकारी, उसके नीचे दूसरा अधिकारी, उसके नीचे दूसरा अधिकारी, फिर कुछ कर्मचारी। वो कैसा सबऑर्डिनेशन है? सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है कि ये फाइनाइट वर्ब है, इसके लिए आपने एक यहां पर क्लाज यूज की और इसके अंदर भी एक क्लाज यूज हो गई, क्लाज के अंदर क्लाज। तो जब क्लाज के अंदर इसने देखिए अपना सबऑर्डिनेशन यहां से लिया, मेन क्लाज में, लेकिन इसने अपना सबऑर्डिनेशन इससे लिया। इस फाइनाइट वर्ब के लिए ये हो सकता है सब्जेक्ट का काम कर रहा था, लेकिन इस क्लाज के अंदर कोई नाउन यूज हुई या वर्ब यूज हुई जिसके लिए आपने एक एडजेक्टिव क्लाज या एडवर्ब क्लाज यूज कर दिया, तो ये वाली क्लाज इसका सबऑर्डिनेट हो। तो ये देखिए ये डायरेक्ट लाइन नहीं बन रही, लाइन यहां गई और यहां से यहां लाइन गई। दैट इज सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। ये दो तरह के मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पैरेलल सबऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। भूलिएगा मत इसको, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। सीधे चलिए बुक 2 के चैप्टर नंबर 8, रेन एंड मार्टिन, बुक 2 चैप्टर नंबर 8। तो पहुंच गए हम, और यहां पर एक सेंटेंस आपके लिए हम लिखते हैं। अब इसको अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए अपनी नोटबुक में, जिससे कि अभी मैं इसको मिटा करके सेंटेंस लिखूंगा तो आप अपनी नोटबुक से उसको देख पाएंगे। मैं इसको मिटा दूं, जल्दी करिए। पैरेलल सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। देखिए एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, whenever he heard the question, whenever
he heard the question, comma, the old man who lived in that house, the old man who lived in that house, फिर से कामा, answered that the earth is flat, that the earth is flat, फुल स्टॉप। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एक स्पेसिमेन है जो आपको जिंदगी भर इस तरह के सेंटेंसेस को समझने में मदद करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर व्हेन एवर लगा हुआ है, तो व्हेन एवर ही हियर द क्वेश्चन, ये पूरा एक शब्द समूह हो गया जिसे हम सबऑर्डिनेट मानेंगे। सबऑर्डिनेट की विशेषता होती है कि नाउन क्लास कनेक्टिव से शुरू होता है, एडवर्ब क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। तो अगर हमको ये कंजंक्शन मिल रहा है तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे मान करके कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। थोड़ी देर बाद समझेंगे कि ये उनमें से है क्या, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास क्या है। इसके बाद हम देखते हैं, लिखा है द ओल्ड मैन। इसके बाद द ओल्ड मैन के तुरंत बाद ये हु आ गया, तो हु भी एक क्लास की शुरुआत करता है, तो हु लिव्ड इन दैट हाउस को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आंसर्ड के बाद फिर ये दैट से आ गया, दैट कनेक्टिव है, दैट द अर्थ इज फ्लैट, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये तीन चीजें जब हम अंडरलाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है द ओल्ड मैन आंसर। द ओल्ड मैन आंसर्ड, दिस इज बेसिकली मेन क्लास। वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया। अब आपको यह देखना है कि ये जितनी भी क्लासेस हैं ये इतने ही 1 2 3 4 वर्ड से ही जुड़े हैं या कहीं और से जुड़े। अगर इन्हीं तीनों से, इसी ये मास्टर हो गया, ये मेन क्लास हो गई। अगर ये तीनों मेन क्लास से अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड अगर जुड़े हुए हैं तो ऑल ऑफ देम आर टेकिंग सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ सबऑर्डिनेशन फ्रॉम द मेन क्लास। दैट विल, कोई एक दूसरे के अंदर सबऑर्डिनेट नहीं है। तो कैसे, देखिए जरा, ये जो लिखा हुआ है, अगर हम एक को केवल देखते हैं, व्हेन एवर ही हियर द क्वेश्चन द ओल्ड मैन आंसर, वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जवाब देने का समय बताया गया है? कब जवाब दिया? जब भी उसने सवाल सुना। जब भी उसने सवाल सुना, वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया। यहां पर जो ही यूज हुआ है वो भी वृद्ध व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। आप कह सकते हैं व्हेन एवर द ओल्ड मैन हियर द क्वेश्चन ही आंसर्ड, आप ऐसे भी कह सकते थे। तो जब भी वृद्ध व्यक्ति ने सवाल सुना उसने जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है, ये जवाब कब दिया? कब दिया? आंसर का टाइम बताया गया है। आंसर कब दिया? जब सवाल सुना। तो ये आपकी हो गई एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज यहाँ। तो ये हो गई एडवर्ब क्लॉज, जो किसके लिए यूज हुई है? आंसर के। आंसर का समय बताती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है हु लिव्ड इन दैट हाउस। ये जानते हैं हु की रिलेटिव प्रोनाउन है, हालांकि कनेक्टिव भी बनता है ये, लेकिन ये मैन के तुरंत बाद आ रहा है। तो मैन एक नाउन है, नाउन के तुरंत बाद आने वाले हु से जो भी स्ट्रक्चर होते हैं आप जानते हैं, वहां हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। तो यहां पर हु लिव्ड इन दैट हाउस, इस मैन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो ये आपकी बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। ये भी किसके लिए है? मैन के। इसके बाद अब हम देखते हैं दैट द अर्थ इज फ्लैट को। ये क्या है? तो आप देखते हैं कि ये आंसर, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आंसर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको इसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो आंसर के बाद
ये जो लिखा हुआ है पूरा दैट लगा करके इसी आंसर का ये N2 बन गया, यानी नाउन क्लाज। ये नाउन क्लाज बन गई N2 पोजीशन की। तो आप देख सकते हैं इन्हीं शब्दों से, यही मुख्य सेंटेंस से ये भी जुड़ा है, एडवर्ब क्लाज भी, एडजेक्टिव क्लाज भी और नाउन क्लाज भी। और ये तीनों क्लाज लगी हुई हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तीनों अपना सबऑर्डिनेशन मेन क्लाज से ले रही हैं, और हम इसे कहेंगे पैरेलल सबऑर्डिनेशन। ये सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट नहीं है। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी उसने सवाल सुना, वृद्ध व्यक्ति जो कि उस घर में रहता था जवाब दिया कि पृथ्वी चपटी है। ये इसका मतलब पर न जाए इसके। आप ध्यान से समझें कि कितना बेहतरीन स्पेसिमेन दिया गया है पैरेलल सबऑर्डिनेशन का। आगे और एग्जांपल आपको बताते हैं। अगला सेंटेंस रूल नंबर 60 के अंदर 3 सेंटेंस दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस। पहला है आई थिंक दैट इज डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट देयर। अब ये सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट के एग्जांपल आप पढ़ने जा रहे हैं। ये बेहतरीन एग्जांपल था पैरेलल सबऑर्डिनेशन का, जिसमें तीनों तरह की क्लासेस थी। कई बार ऐसा भी होगा कि 2 नाउन क्लासेस हो सकती हैं पैरेलल सबऑर्डिनेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 एडजेक्टिव क्लासेस हो सकती हैं पैरेलल सबऑर्डिनेशन में। कई बार 2 एडवर्ब क्लासेस हो सकती हैं पैरेलल सबऑर्डिनेशन में। कई बार इनमें से 2 हो सकती हैं नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास नाउन क्लास। यहाँ एग्जाम्पल में आपको तीनों मिले। ध्यान दीजिएगा, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो यहाँ पर अब हम जो 60 में पढ़ने जा रहे हैं, 3 सेंटेंस हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट बताया गया है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, पहला सेंटेंस लिखा है आई थिंक दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट देयर। ही डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट देयर। अब गौर से जरा देखिए, यहां पर ये आई सब्जेक्ट और थिंक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये दैट लगा करके ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और कहां तक जाता है, यहां तक जाता है। अदरवाइज अगर आप इसको चाहें तो सिर्फ यहां तक ले जा सकते हैं, दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर। अगर सिर्फ आप यहां तक रखते हैं तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, ये थिंक के लिए दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर इनटू पोजीशन की ये नाउन क्लास बन गई, नाउन क्लास। और इसका मतलब हो गया, मुझे लगता है कि उसने पत्र नष्ट कर दिया या नष्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि उसने पत्र नष्ट कर दिया था, ये नाउन क्लास हो गई इनटू पोजीशन की। लेकिन ये जो विच यू सेंट देयर है, ये क्या है, ये इस लेटर नाउन के लिए, जो कि खुद इनटू पोजीशन में डिस्ट्रॉय का कर्म बना हुआ है। तो ये लेटर है क्या, ये मेन क्लास का कर्म है या नाउन क्लास के अंदर आने वाली वर्ब का कर्म है। तो ये लेटर इस नाउन क्लास का हिस्सा है, और इस नाउन क्लास के नाउन के लिए ये देखिए एडजेक्टिव क्लास लगी। अब ये एडजेक्टिव क्लास क्या मानी जाएगी, ये एडजेक्टिव क्लास के बिना भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। आई थिंक दैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, यहां से भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव क्लास है, इसका आई थिंक से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना लेटर से है। और लेटर क्या है, नाउन क्लास के अंदर जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो अगर नाउन क्लास के अंदर के किसी हिस्से के लिए ये एडजेक्टिव क्लास आया है, तो क्या मानेंगे हम, ये नाउन क्लास है तो ये एडजेक्टिव क्लास है, ये नाउन क्लास ना होता तो ये एडजेक्टिव क्लास ना होता। इसका मतलब इस बार नाउन क्लास के अंदर एडजेक्टिव क्लास है, तो संरचना ये बन गई। आप देख सकते हैं, इसके लिए आपने एक सब्जेक्ट यूज किया आई के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपने एक नाउन क्लास लगा दी, और इस नाउन क्लास के अंदर आपने एक एडजेक्टिव क्लास। ये मेन क्लास हो गई, फाइनाइट वर्ब मेन क्लास।
ये नाउन क्लाज वाली फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये इसके अंदर की एडजेक्टिव क्लाज। तो ये सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट हो गया। देख सकते हैं ये एडजेक्टिव क्लाज इस नाउन क्लाज के लिए यूज की। सबऑर्डिनेशन विद इन सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट आप इसे कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है बी में, ही रिप्लाइड दैट ही वर्क वेन एवर ही लाइक। ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड whenever he liked, whenever he liked। अब यहां पर देखिए जरा, ये ही सब्जेक्ट, रिप्लाइड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और रिप्लाइड के तुरंत बाद फिर से कर्म के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ दैट से दैट ही वर्क, ये इतनी आपकी नाउन क्लास। उसने जवाब दिया कि उसने काम किया। कब काम किया? इस वर्क का टाइम, इस वर्क का टाइम बताने के लिए ये हिस्सा यूज हुआ है व्हेनेवर ही लाइक। तो ये काम करना, ये वर्क, ये नाउन क्लास की वर्ब है। नाउन क्लास की वर्ब का टाइम बताने के लिए एडवर्ब क्लास यूज की गई है। अगेन नाउन क्लास के अंदर एडवर्ब क्लास होगी। पहले नाउन क्लास के अंदर एडजेक्टिव क्लास थी, और इस बार नाउन क्लास के अंदर एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास के लिए एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास की वर्ब के लिए एडवर्ब क्लास। पहले वाले में नाउन क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव क्लास। उसने जवाब दिया कि उसने काम किया, जब भी उसे पसंद आया, जब भी उसे अच्छा लगा, उसने काम किया। अगला सेंटेंस बी देखिए जरा, सी, आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन। आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आई सब्जेक्ट है और नो ट्रांजिटिव वर्ब है, और द मैन उसका ऑब्जेक्ट है, इनटू रखा हुआ है। तो इस मैन के लिए सेंटेंस यहां से कंप्लीट है, लेकिन इस मैन की विशेषता बताने के लिए हु से एडजेक्टिव क्लास जाता है, जो आखिरी तक जाता है। मैं उस आदमी को जानता हूं। किस आदमी को मैं जानता हूं? जिसने कहा। अब यहां पर आप देखिए, ये एडजेक्टिव क्लास यहां से शुरू हुई, और इस एडजेक्टिव क्लास के लिए जैसे ही ये सेड आया, सेड अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी मिला था सेज, उसी की ये सेकेंड फॉर्म है सेड। तो सेड जब फिर से ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को फिर से कर्म चाहिए, लेकिन कर्म की जगह कोई साधारण नाउन या प्रोनाउन नहीं यूज की गई, सीधे सीधे दैट वाला शब्द समूह आया है। और दैट ये कनेक्टिव से जानते हैं आप, नाउन क्लास शुरू होती है इनटू पोजीशन की नाउन क्लास, और इस बार पलट गया ए का उल्टा, इस बार एडजेक्टिव क्लास के अंदर नाउन क्लास होगी। एडजेक्टिव क्लास के वर्ब के कर्म के रूप में नाउन क्लास का यूज किया है। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने कहा, क्या कहा? कि ऐसा होगा, दैट दिस वुड हैपन। तो ये तीनों सेंटेंसेस सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट के बेहतरीन एग्जाम्पल थे। इनको अच्छी तरह से आप समझ के रखिए। एक्सरसाइज नंबर 35 भी आपको करनी होगी। अब इसके बाद यहां पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 61 कहीं से लिटरेरी पीस आपका निकाला गया है, तो इसको आप देखना चाहें आपकी मर्जी, इसे भी देख सकते हैं। 62 में भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस दिए गए हैं जो लिटरेरी स्टाइल के हैं। आगे भी मैं एक सेंटेंस आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत अच्छा है, 62 का 1। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा जब दोनों लक्षण मिलेंगे, पैरेलल सबऑर्डिनेशन भी और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट भी। हो सकता है कि दो सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे हों जो पैरेलल मेन क्लास के लिए काम कर रहे हैं, और फिर उनमें से किसी एक के अंदर हो सकता है कि सबऑर्डिनेट अंदर उसके अंदर भी हो। तो जरा इस चीज को आप गौर से देखिए कि ये क्या हो सकता है जब पैरेलल सबऑर्डिनेशन भी होगा और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट भी होगा। तो एक आप डायग्राम या आप एक ग्राफिकल, उसका भी एक ग्राफिक्स आप समझ सकते हैं।
जैसे कि ये मेन क्लास की फाइनाइट वर्ब है और इसके लिए आपने एक यूज कर दिया यहां पर नाउन क्लास और एक आपने यूज कर दिया इसके लिए एडजेक्टिव क्लास। ये देखिए ये दोनों के दोनों आपके सोर्स कहां से ले रहे हैं, मेन क्लास। लेकिन इनमें से किसी एक के अंदर आपने सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट कर दिया, ये अपना सबऑर्डिनेशन इससे ले रहा। दो सेंटेंस पैरेलल सबऑर्डिनेशन में, लेकिन एक क्लास आपका सबऑर्डिनेट के अंदर चला गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जब दोनों लक्षण आपको मिल सकते हैं, पैरेलल सबऑर्डिनेशन का लक्षण भी और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। द हिंदू के जो एडिटोरियल आपको पढ़ाए जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि उसके जितने भी राइटर हैं, आपके जितने भी एडिटर हैं, उन सब ने रेन एंड मार्टिन को बहुत ढंग से पढ़ रखा है लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने सेंटेंसेस वो यूज करते हैं सब के सब इसी करेक्टर के होते हैं। कोई पैरेलल सबऑर्डिनेशन वाला, कोई सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट, कोई दोनों तरह के लक्षण। अभी चिंता मत करिए, अभी तो इसमें कंपाउंड की एंट्री बाकी है, तब जाकर के फाइनल मिक्सचर बनेगा। अभी दो तरह के मिक्सचर आपने पढ़े हैं, तीन तरह के मिक्सचर, एक पैरेलल सबऑर्डिनेशन, एक सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट, एक पैरेलल प्लस सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट, दोनों तरह के लक्षण। तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर आपको मिले। ये अभी भी ये सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनमें जब कंपाउंड का लक्षण आ जाएगा तब कहानी कुछ और बदल जाएगी, वो आपको अगले चैप्टर में बताई जाएगी। अभी लेकिन यहां पर जो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, जिसमें दोनों लक्षण है, पैरेलल सबऑर्डिनेशन का भी लक्षण है और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट का भी लक्षण है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस आपको और कराता हूं, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। 62 का 2, एवरीवन हु नोज यू, एवरीवन हु नोज यू, इसके बाद कामा लगा दिया इन्होंने, एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेजेस, और एक्नॉलेजेस के बाद इन्होंने फिर से कामा लगा दिया, और कामा लगाने के बाद लिखते हैं व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, व्हेन ही कंसीडर द केस कामली। इसके बाद आगे लिखते हैं फिर से ये कामा लगा करके, दैट यू हैव बीन रॉन्ग, दैट यू हैव बीन रॉन्ग। बहुत अच्छी तरह समझिएगा इसको। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हु नोज यू, ये इतना हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लास होती है, अक्सर एडजेक्टिव क्लास का है ये, इसको मैंने अंडरलाइन किया। ये व्हेन से शुरू हो रहा, हमने व्हेन ही कंसीडर द केस को भी अंडर, कामली तक के केस, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया, व्हेन ही कंसीडर द केस कामली, और दैट यू हैव बीन रॉन्ग को भी हमने अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि ये दैट से शुरू होता है। ये शब्दों पर आप गौर करिए, दीज आर द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, subordinate in conjunction, connective. These are the words which start, which introduce noun class, adjective class, adverb class. तो इसलिए हमने उनको जहां जहां मिल गए उस शब्द समूह को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसको अंडरलाइन करने के बाद हमारे पास बचता है एवरीवन एक्नॉलेजेस, केवल इतना बचता है। इसका मतलब अगर हम यहां पर इसको लिख दें एवरीवन एक्नॉलेजेस, अब हम इसके बाद पकड़ सकते हैं कि कौन क्या है। हर कोई स्वीकार करता है। अब हर कोई कौन, इस हर कोई के लिए ये हु नोज यू लगा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास हो गई आपकी, जो एवरीवन को एक्सप्लेन करती है। हर कोई कौन, जो आपको जानता है। तो ये हु नोज यू, ये आपकी सोर्स कहां से ले रही सबऑर्डिनेशन का, मेन क्लास। इसके बाद जैसे ही एक्नॉलेजेस आया, एक्नॉलेजेस के बाद ये लिख दिया व्हेन ही कंसीडर द केस कॉमली, जब वो इस मामले को शांतिपूर्वक विचार करता है। तो ये समय बताया गया, किसका समय बताया गया है,
एक्नॉलेज करने का। कब एक्नॉलेज करता है? हर कोई कब स्वीकार करता है? जब वो इस मामले को शांतिपूर्वक विचार करता है, तब वो एक्नॉलेज करता है। इट मीन्स कि ये व्हेन वाला पूरा का पूरा हिस्सा अगेन एक्नॉलेज का टाइम बता रहा, तो ये फिर से देखिए, ये एडवर्ब क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब बचता है दैट यू हैव बीन रॉन्ग। ये बिल्कुल जो पहला सेंटेंस आपको पैरेलल सबऑर्डिनेशन का बताया गया था वैसा ही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दैट यू हैव बीन रॉन्ग, ये एक्नॉलेज की नाउन क्लॉज है। हर कोई क्या स्वीकार करता है? एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट यू हैव बीन रॉन्ग। हर कोई स्वीकार करता है कि आपके साथ गलत हुआ है। कौन हर कोई? जो आपको जानता है। कब स्वीकार करता है? जब वो इस मामले को शांतिपूर्वक विचार करता है। अब आप पूरा मिला दीजिए। हर कोई जो आपको जानता है स्वीकार करता है जब इस मामले पर शांतिपूर्वक विचार करता है कि आपके साथ गलत हुआ है, गलत किया गया है। तो ये अभी भी ये आपका पैरेलल सबऑर्डिनेशन का था पूरा। और निश्चित तौर पर आपको पैरेलल प्लस सबऑर्डिनेशन के भी एग्जांपल या आपको एक्सरसाइज में सेंटेंस जरूर मिलेंगे। इन पे आपको महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टाइज पैदा करना है आपको। अगर आप इंग्लिश में कमांड कहते हैं तो इन पर आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बिल्कुल तोड़ देने की क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कहीं पर आप फंसें, लेकिन अगर आप 90% केसेस में कामयाब हो गए तो दैट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, मैटर ऑफ डिलाइट, मैटर ऑफ प्राइड। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। उस 10% से भी एक दिन जरूर निपट लेंगे आप। जैसे धीरे धीरे आप अच्छी से अच्छी किताबें, अच्छे से अच्छे एडिटोरियल, अच्छी से अच्छी मैगजीन पढ़ते रहेंगे, आप उसमें भी सक्षम हो जाएंगे। आपकी कलम भी ऐसी धार आ जाएगी, आप ऐसा लिखेंगे कि पढ़ने वाले पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कौन? जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग। हर कोई आपकी लिखावट को नहीं समझ पाए। बहुत अच्छा आप लिखेंगे, आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं अगर इंग्लिश अच्छी है। वकील तो आप इतने अच्छे बन सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर सीधे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बार बार लोगों को ये बताता हूं, शायद हो सकता है भविष्य में मैं भी कोई ऐसा ही प्रोफेशन फिर से चुन लूं सेकंड पारी में अपने। तो ये याद रखिए, ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो मैं खुश होता हूँ इस बात के लिए कि मेरे हाथ में किसी जमाने में कभी किताब आई और मैंने इसे समझा और इसको मैंने महत्व, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात। तो आप भी इसको ध्यान से समझें और इसके महत्व को समझें। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, तीसरा भी लिटरेरी स्टाइल का है। और आगे मैं चलता हूं, जैसे चौथा सेंटेंस। तो चौथा सेंटेंस भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं चौथे की जगह यहां पर चौथा भी आपको समझा देता हूं, पांचवा भी समझा देता हूं, छठवां भी समझा देता हूं। लेकिन अगर मैं बोर्ड का यूज नहीं करता हूं तो आप समझने की कोशिश करिए, या मैं बता देता हूं। चलिए ले लेता हूं पेन आपके लिए और थोड़ा सा, क्योंकि बस ये इतने आपको समझ आ गए तो समझ लीजिए कि काफी कुछ फायदा आपका हो जाएगा और हमारा भी आज का काम हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई आप लोगों को? एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं? मुझे नहीं मालूम आप कितना एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आज भी मुझे ये सब पढ़ाते हुए बहुत बहुत खुशी होती है। आपको पढ़ते हुए कितनी खुशी होती है आई डोंट नो, लेकिन मैं जरूर आनंदित हूं। तो देखिए मैं चौथे सेंटेंस को लिखता हूं, आई न्यू अ मैन, आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड, who believed that, इधर ले आते हैं इसको, who believed that if
a man were permitted to make the ballot ballot, comma, he need not care who made the laws of a nation. Who made the laws of the nation. तो देखते हैं हम यहां पर हम पाते हैं आई न्यू अ मैन, शुरू में ही मेन क्लॉज लगा दी गई है। यहां पर कोई हमको कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हैं कि हु बिलीव, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो मैन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज है, मेन क्लॉज के लिए यूज हुई है ये एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन बिलीव के तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि दैट आ गया। इसका मतलब ध्यान से समझिए, दैट का मतलब है कि बिलीव के लिए नाउन क्लॉज की शुरुआत होगी, लेकिन जैसे ही नाउन क्लॉज का कनेक्टिव आया, इस नाउन क्लॉज के कनेक्टिव के बाद इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेट ही नीड नॉट केयर हु मेड द लॉज ऑफ द नेशन कर दिया। तो यहां पर जो है, अब आप गौर से देखिए जरा कि जैसे ये दैट कनेक्टिव आया तो यहां पर ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ गई, इफ अ मैन वर परमिटेड टू मेक द बैलेट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के मेन क्लॉज आपकी यहां पर जाती है, तो इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पूरी यहां तक जाती है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने नाउन क्लॉज के अंदर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन डाल दी, नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज दो हिस्सों का हो गया, याद रखिएगा ये चीज यहां पर इन्होंने कामा जरूर लगा दिया है, लेकिन अगर इस कामा को ये ना लगाते तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही चीज आपको बताई जाएगी जब कहा जाएगा कि दो कनेक्टिव लगातार आते हैं। दो मतलब जैसे कि इफ या वेदर को भी आप कनेक्टिव बनाते हैं और दैट को भी बनाते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू होगी, उसके तुरंत बाद इफ आ सकता, उसके तुरंत बाद व्हेन आ सकता है, उसके तुरंत बाद अनलेस आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस नाउन क्लॉज को कॉम्प्लेक्स रखा गया। तो जब नाउन क्लॉज को कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो उसके अंदर एक एडवर्ब क्लॉज हो गई और ये नाउन क्लॉज की मेन क्लॉज हो, नाउन क्लॉज की मेन क्लॉज, गौर करिएगा जरा। तो ये पैरेलल सबऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट होने जा रहा है। यहां पर इस मैन के लिए आपने हु बिलीव्ड यूज किया, देखता हूं जरा, ये मैन के लिए हु बिलीव्ड के बाद नाउन क्लॉज आया, नाउन क्लॉज के अंदर एडवर्ब नहीं, ये भी सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट ही है। इस मैन के लिए जो एडजेक्टिव क्लॉज आया है उस पूरे एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर अब जानते हो परत क्या बनने जा रही है, ये बना, इसके अंदर ये बना और इसके अंदर भी ये बन गया भाई, ये सूरत बन गई। मेन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट का सबऑर्डिनेट क्लॉज। जरा दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मैन के लिए हु बिलीव्ड, ये पहली परत हो गई। हु बिलीव्ड के तुरंत बाद दैट से जो कुछ आया बिलीव के कर्म के रूप में ये वाला सेंटेंस हो गया, और ये वाला सेंटेंस भी दरअसल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी हमको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसे भी कर देना चाहिए यहां पर भी। और आप गौर से देखिए कि ही नीड नॉट केयर, ही नीड नॉट केयर के बाद ये जो केयर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए हु मेड द लॉज ऑफ द नेशन, ये फर्दर नाउन क्लॉज हुई, नाउन क्लॉज इनटू पोजीशन। तो अब आप देख सकते हैं, आप फाइनाइट वर्ब काउंट करिए, न्यू 1, बिलीव्ड 2, वर्ब परमिटेड 3, नीड 4 और मेड 5। 1 2 3 4 5, 5 क्लॉजेज हैं आपकी यहां पर, जिसमें से एक ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज के लिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ये नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज के अंदर दो क्लॉजेज हो गई,
एक आपकी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गई और एक ये मेन क्लॉज हो गई, और इसके अलावा इसी मेन क्लॉज के लिए जो केयर आया था, केयर के लिए फर्दर एक नाउन क्लॉज होगी। अब आप इसका मतलब समझिएगा, आई न्यू अ मैन, मैं एक ऐसे आदमी को जानता था, हु बिलीव, जो विश्वास करता था। क्या विश्वास करता था? दैट की यदि किसी व्यक्ति को अनुमति मिल जाए बैलेट तैयार करने की, वर्ब परमिटेड लिखा है, ये आपका सब्जेक्टिव मूड का यूज किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अनुमति मिल जाए बैलेट तैयार करने की, तो क्या? ही नीड नॉट केयर, उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे परवाह करने की जरूरत नहीं होती है। क्या परवाह करने की जरूरत नहीं होती है? हु मेड द लॉज ऑफ द नेशन, कि देश के कानून किसने बनाए। कहने का मतलब यहां पर सेपरेशन ऑफ फंक्शन की बात की गई। लाइफ में आपको अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। आपको जो काम दिया गया है आप उसमें पूरी मेहनत से काम करिए, दूसरे की परवाह मत करिए, दूसरे को दूसरा काम करने दीजिए, आप अपना काम पूरी तल्लीनता से करिए। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मीनिंग है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबॉर्डिनेट विद इन सबॉर्डिनेट का केस है, और फिर सबॉर्डिनेट के अंदर जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर जो सबॉर्डिनेशन है, आप उनको पैरेलल सबॉर्डिनेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी इसी से सोर्स ऑफ अथॉरिटी ले रहा है, ये भी इसी से सोर्स ऑफ, तो यहां जाकर पैरेलल सबॉर्डिनेशन हुआ है। आप देखिए जरा, ये दैट से जो आपका पूरा हिस्सा आ रहा है, इसके लिए इफ वाला हिस्सा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये हो गई। और इसी के लिए जो केयर यूज किया गया, इसका जो मेन क्लॉज है, इस दैट का जो मेन क्लॉज है, दैट ही नीड नॉट केयर, दैट ही नीड नॉट केयर हु मेड द लॉज ऑफ द नेशन, तो इस केयर के लिए नाउन क्लॉज लगी हुई है। तो दैट के बाद जो पूरी की पूरी ये नाउन क्लॉज है, उसके अंदर एक एडवर्ब क्लॉज और एक फर्दर नाउन क्लॉज, ये दोनों पैरेलल सबऑर्डिनेशन है। आप चाहें तो बोल सकते हैं आई न्यू अ मैन हु बिलीव, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो विश्वास करता था, क्या? कि ही नीड नॉट केयर, उसे परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि देश के कानून किसने बनाए, यदि उस व्यक्ति को अनुमति मिल जाए बैलेट तैयार करने। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं अगला सेंटेंस बताता हूं, आप जरूर इनका रिवीजन करें, बार बार देखें, इनको अच्छे से समझें, जरूर स्ट्रक्चर पे फोकस करें, स्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट। आगे मैं और आपको देखिए, अगला सेंटेंस जैसे लिखा है, द मैन हु कैन प्ले मोस्ट हर्टली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग इज जनरली द मैन हु कैन वर्क मोस्ट हर्टली व्हेन ही मस्ट वर्क। इसको भी मैं लिख देता हूं, द मैन हु कैन प्ले मोस्ट हर्टली when he has the chance of playing, when he has the chance of playing is the man is generally the man is generally the man who works most heartily, who can work most heartily when he must work, who can work most heartily when he must work। अब आप देखिए जरा, हु कैन प्ले मोस्ट हार्टली एक शब्द समूह, सबॉर्डिनेट क्लास, व्हेन ही हैज चांस ऑफ प्लेइंग दूसरी सबॉर्डिनेट क्लास, एक हु से शुरू हुई एक व्हेन से शुरू हुई। इस जनरली द मैन वाले हिस्से में कोई चीज नहीं, फिर से हु से शुरू हुआ, हु कैन वर्क मोस्ट हार्टली एक क्लास, व्हेन ही मस्ट वर्क एक और क्लास। अब हमारे पास बचा कितना? द मैन इज जनरली द मैन, आदमी सामान्यतया आदमी है। अब कौन सा आदमी है? यहां पर ये N1 है,
ये इज लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये वाला N4 है कॉम्प्लीमेंट, किसका? इज का। वो आदमी सामान्यतया ये आदमी होता है, ये कौन सा आदमी है, ये कौन सा आदमी है? तो इस आदमी की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज लगा है, हु कैन प्ले मोस्ट हार्टली। एडजेक्टिव क्लॉज किसके लिए आया है? इस मैन के। आदमी जो सबसे ज्यादा, जो बहुत मतलब जो दिल से खेल सकता हो, लेकिन ये देखिए जरा, प्ले कब करेगा? प्ले करने का समय बताया गया है, व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग। तो ये जरा देखिए, ये जो आया है कि जब उसके पास खेलने का मौका हो, ये किसका समय बता रहा? इस प्ले का। और ये प्ले क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। गौर से देखिए, यही एग्जाम्पल है जो पैरेलल सबऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, आप अगर यहां पर लिख दें द मैन इज जनरली द मैन, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, इस मैन की विशेषता बताने वाला हिस्सा यहां पर आया है एडजेक्टिव क्लॉज, जो अपने अंदर एक एडवर्ब क्लॉज भी लिए। द मैन हु कैन प्ले मोस्ट हर्टली, एडजेक्टिव क्लॉज, व्हेन ही हैज चांस ऑफ फ्लाइंग, इसके अंदर का एडवर्ब क्लॉज। आदमी जो सबसे ज्यादा दिल से खेल सकता हो, जब उसके पास खेलने का मौका हो, इज जनरली द मैन, ये सामान्यतया वही आदमी है। अब इस आदमी के बारे में बताया गया है, ये कौन सा आदमी है? हु कैन वर्क मोस्ट हर्टली। अब फिर से इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया है। अब इस एडजेक्टिव क्लॉज का फिर इसके अंदर जो है वर्क का, हु कैन वर्क मोस्ट हर्टली, तो कब ये काम कर सकता है? व्हेन ही मस्ट वर्क, जब उसे काम करना होगा। अब ये भी टाइम बताने वाला इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज होती है। तो अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, एक इस मैन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज, एक इस मैन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज पैरेलल। ये भी नाउ मेन क्लॉज के मैन के लिए N1 के लिए, ये N4 के लिए, एक A4, एक A1, एक A4। इस एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर भी एडवर्ब क्लॉज, और इस एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर भी एडवर्ब क्लॉज। और इस तरीके से ये 1 2 3 4 4 5 5 क्लॉज रखने वाला ये सेंटेंस हो, जिसमें पैरेलल सबऑर्डिनेशन भी है और सबऑर्डिनेट विद इन सबऑर्डिनेट। आदमी जो सबसे अच्छी तरह यह दिल से खेल सकता हो, जब उसके पास खेलने का मौका हो, सामान्यतया वही आदमी है जो सबसे दिल से, यानी बहुत ही दिल से काम करता है या काम कर सकता है, जब उसे काम करना होता है, जब उसके लिए काम करना आवश्यक होता है। समझता हूं ये आप समझ गए होंगे। आखिरी, should you be so unfortunate as to suppose that you are a genius and that things will come to you, it would be well to undeceive yourself as soon as it is possible। तो लिखा है should you be so unfortunate, so unfortunate as to suppose, as to suppose that you are a genius, that you are a genius, comma, and the things will come to you, and the things will come to you, it would be well, it would be well to undeceive yourself, to undeceive yourself
as soon as it is possible, as soon as it is possible। अब जरा यहां पर हम देखते हैं कि कितनी ऐसी क्लासेस हैं जो सबऑर्डिनेट हैं। तो हमको शुरू में शुड मिल गया, शुड यू बी सो अनफॉर्चुनेट। तो अगर यहां शुड मिला तो यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, शुड, वर, हैड। ग्रामेरियन ज्यादातर इन्हें ही बताते हैं। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से शुरू हुआ है, अगर आप इफ को नहीं लगाना चाहते हैं तो इन्वर्जन कर दीजिए, शुड को, हैड को, वर को बाहर ले। रेना एंड मार्टिन ने डिड के साथ भी इन्वर्जन किया है। तो यहां पर ये जो आपका लगा है शुड यू बी, अगर आप शुड यू बी को इफ लगा दें तो इफ लगाते ही ये शुड बी आपका पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इफ यू शुड बी। डिस्टर्ब मत करिए, बातचीत अगर आप करेंगे मैं निकाल दूंगा, दोबारा क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। पढ़ाते वक्त अगर माइक ऑन करके आप इधर उधर की बात करेंगे। शुड यू बी, इसको जब आप इन्वर्जन को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा इफ यू शुड बी, इफ यू शुड बी। और जैसे ये इफ यू शुड बी हुआ, इट मींस कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब ये सो अनफॉर्चुनेट एज टू सपोज, जितना हिस्सा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दैट से शुरू हो रहा तो दैट यू आर अ जीनियस भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। एंड से, एंड के बाद फिर शायद दैट लगा था, मैं भूल गया लगाना, हाँ लगा हुआ था, एंड दैट, ये दा नहीं था यहां पर, दैट था, एंड दैट। तो ये एंड लगाकर फिर दैट से, दैट थिंग्स विल कम टू यू, फिर से सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये इसके बाद कामा के बाद इट वुड बी वेल टू अनडिसीव योरसेल्फ, इतने हिस्से में कोई कंजंक्शन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कोई कनेक्टिव यूज नहीं हुआ। इसका मतलब यही मेन क्लॉज है। इधर आप देखिए कि एज सून एज फिर से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये फिर से इतना हिस्सा आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। जितने अंडरलाइन पार्ट है वो सब के सब सबऑर्डिनेट हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका मेन क्लॉज है। इट वुड बी वेल टू अनडिसीव योरसेल्फ, अच्छा होगा आप अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना देना अच्छा होगा, अनडिसीव, धोखा ना देना। अब हम देखेंगे कि कौन क्या चीज है। तो यहां पर लिखा है कि इफ यू शुड बी सो अनफॉर्चुनेट एज टू सपोज, ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये सपोज जो वर्ब आई है ट्रांजिटिव वर्ब, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए दैट के नाउन क्लॉज शुरू होती है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के अंदर नाउन क्लॉज चली गई। और सिर्फ एक नाउन क्लॉज नहीं है, दो नाउन क्लॉज हैं, एक दैट से ये शुरू होती है, एक दैट से ये शुरू होती है। तो जब दोनों नाउन क्लॉज ये सपोज के लिए है, इसीलिए एंड से जोड़ी गई है, ये आपस में पैरेलल सबऑर्डिनेशन में हो गई। ये दोनों नाउन क्लॉज पैरेलल सबऑर्डिनेशन में, ये भी सपोज का कर्म है और ये भी सपोज का कर्म है। जैसे आप कह सकते हैं आई गेव दिस टू राम एंड मोहन, आप ऐसे कह सकते हैं, दो लोगों को एंड लगाकर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। तो ये भी नाउन क्लॉज सपोज का कर्म और ये भी नाउन क्लॉज सपोज का कर्म, ये दोनों एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के अंदर की नाउन क्लॉज है जो सपोज का कर्म है। जैसे ये खत्म हुआ आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अपने अंदर दो नाउन क्लॉज लिए हुए, जैसे ही खत्म हुई मेन क्लॉज चालू होगी। और इस मेन क्लॉज के बाद ये लिखा हुआ है कि अपने आप को धोखा ना दे, अच्छा होगा। कब धोखा ना दे? एज सून एज इट इज पॉसिबल। ये फिर से एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लगी हुई है, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन दोनों मेन क्लॉज के लिए है, तो ये भी और ये दोनों पैरेलल में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी मेन क्लॉज के लिए, ये टाइम बता रहा धोखा न देने का, और ये कंडीशन बता रहा, लेकिन कंडीशन वाले के अंदर फर्दर दो नाउन क्लॉज लगी। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये आपकी दो एडवर्ब क्लॉज लगी हुई हैं, एक इधर और एक इधर, दो एडवर्ब क्लॉज लगी हुई हैं, ये दोनों पैरेलल में।
लेकिन एक एडवर्ब क्लॉज के अंदर दो नाउन क्लॉज लगी हैं जो पैरेलल सबऑर्डिनेशन में, ये पैरेलल सबऑर्डिनेशन हो गया, ये इसकी सबऑर्डिनेट, ये इसकी सबऑर्डिनेट। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, अकेले है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है जो अपने अंदर दो नाउन क्लॉज दिए हुए हैं, वो आपस में पैरेलल। मतलब समझ लीजिए, इफ यू शुड बी सो अनफॉर्चुनेट, यदि आप इतने अभागे निकलें, इतने अभागे हों, कितने, एज टू सपोज कि ये मान बैठे, क्या मान बैठे, दैट यू आर अ जीनियस, कि आप जीनियस हैं, और क्या मान बैठे, एंड दैट थिंग्स विल कम टू यू, कि चीजें आपके पास आ जाएंगी, ऐसे ही आ जाएंगी। अगर आप ऐसा मान बैठे, अगर आप इतने अभागे हैं कि ये बातें मान बैठे, तो क्या, इट वुड बी वेल, अच्छा होगा, टू अनडिसीव योर सेल्फ, अपने आप को धोखा न दें। कब धोखा न दें, एज सून एज इट इज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो, इस धोखे से अपने आप को बाहर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतनी ही क्लास होगी। अब आपके सामने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 35 और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 56 ये करने की जिम्मेदारी आपके अंदर आपको मिल गई है। एक सप्ताह बाद आपसे फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट। इस वीडियो को जरूर बार बार देखें।